مسیح یسوع کی جلالی قدوس اتم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بفضل خدا 2025 کے چند لمحات ہماری زندگیوں میں باقی ہیں، اور خدا کا یہ کرم، یہ خدا کا فضل، یہ خدا کی رحمت اور یہ خدا کی فضیلت ہے کہ ہم اس کے گھر میں موجود ہیں۔ اس لیے موجود ہے کہ ہم کلام مجسم کی پیدائش کی خوشیوں میں شریک ہوئے، اور آج ہم 2025 کے آخری لمحات میں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، تاکہ ہم نے جو پورا سال اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ برکت کا حصہ اپنے خدا میں پایا اور گزارا، اس پر ہم سوچ وچار کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ خدا کا مقصد ہماری زندگیوں میں کیا ہے۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد بماس گھڑی ہے یا کیلنڈر کا دنوں کا بدلنا؟ اگر گھڑی اور کیلنڈر کا بدلنا ہی ہماری زندگی ہے تو پھر ہم خدا کو خدا نہیں مانتے۔ اگر ہم خدا کو خدا مانتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں خدا کو دیکھنا ہے۔ تو یہ رات، یہ چند لمحات نئے سال کی محبت کے ظرف کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے حکمت کا وقت ہے، دانائی کا وقت ہے کہ ہم نئے سال کی ترجیحات کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ اگر ہم 12 ماہ گزار کر بھی اس سوچ میں ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، مگر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے بھروسے میں ایک شخص ہے، اور وہ شخص انسان نہیں، وہ شخص بادشاہ ہے، وہ شخص خالق ہے، اور وہ شخص مالک ہے، اور اس کا تخت آسمان ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ زمین اس کی برکت کا حصہ ہے، جس پر اس نے کہا بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو معمورو محفوظ کرو۔ تو زمین پر ہم برکت کا وہ حصہ ہیں جس میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا۔ اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ خیمہ ایک دن گرایا جائے، تو جس دن گرایا گیا پھر ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا۔ گرنے سے پہلے ہی ہم نے اپنے آپ کو ایک نئی شکل میں لانا ہے، ایک نئی مخلوق بننا ہے، ایک نئی صورت اختیار کرنی ہے، اور ایک نئی عقل و دنا بننا ہے۔ اس لیے پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس کے 5ویں باب میں، دوسرا کرنتھس کا خط اور اس کا 5 باب، اس کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے، if anyone in God, in Jesus Christ، تو وہ کیا ہے؟ نئی مخلوق۔ کتنا بڑا ہم مسیحوں کے پاس یہ اجر ہے کہ ہم مسیح میں بھی ہیں، اور مسیح میں کیا ہے؟ نئی مخلوق ہے، نئے انسان ہیں، اور نئی دلہن ہے جو سجی ہوئی ہے، جو اپنے دلہا کا انتظار کر۔ مسیح یسوع کی پیدائش کے بعد جو ہفتہ ہوتا ہے، ایسے مسیحی ہوتے ہوئے، ایسے خادم ہوتے ہوئے، ایسے ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں سوچ وچار کرنا چاہیے
کہ جو ہم نے اتنا یعنی مسیح اور مولود مقدس کے متعلق، اس کی پیدائش کے متعلق جو سیکھا ہے، کیا اس سے میں نے کچھ کیا ہے اپنی زندگی میں؟ سال گزر گیا، میں نے کچھ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا اور نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، کسی سبب سے، کسی حالات کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، خدا نے اب مجھے موقع دیا ہے کہ نئے سال سے پہلے میں اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکوں، میں اپنی زندگی کو سنبھال سکوں، میں اپنی زندگی میں اپنے خدا کو شامل کر سکوں اور اپنے آپ کو ایک نئے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر کر سکوں۔ میرے ایک دوست امریکہ سے پاسٹر ہے، اپولوجیٹک کا بہت بڑا ماہر ہے، اور اکثر میری اس کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں اس کا جو کلام سنتا رہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے کہا پاکستان کی کلیسیا کے اپنے اپنے ڈبے ہیں، ان کی اپنی اپنی زندگی کا جینا ہے، وہ اپنے گھروں میں مسیح کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ مسیحی تو ہیں مگر مسیح کی طرح وہ جینا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، دنیا کے رنگوں میں ایک ایسا رنگ بھی ہے جس رنگ کی نسبت سے ہم نئی مخلوق کہلاتے ہیں، وہ رنگ میرے مسیحا کا صلیب پر بہا اور وہ لہو ہے۔ جس سبب سے میں نیا انسان بنا، جس سبب سے میں خادم بنا، جس سبب سے میں نے کلیسیا کو بنایا، جس سبب سے میری کلیسیا میرے ساتھ خدا کے لیے قربانی گزارتی ہے اور خدا کی شکر گزاری کرتی ہے، اس لیے ہم مسیح میں نئے ہیں، ایک نئی دلہن کے طور پر اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہر وقت، ایک وقت نہیں ہر وقت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نظر ثانی کریں۔ چرچ میں آنا مسیحی ہونے کا دعویٰ نہیں، چرچ میں آنا اچھے کپڑے پہن کر یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ میں مسیحی ہوں، چرچ میں آ کر تالی بجانا یہ بھی کوئی مسیحی نہیں ہے۔ چرچ میں آنا گواہی کو لے کر آنا، اپنے ہتھیار کو اٹھا کر لانا، یہ ہے مسیحت کہ میرے ہاتھ میں خدا کا کلام ہے، اور وہ کلام جس کے بارے میں زبور نبی فرماتا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ تو یہ آخری دن اس بات کو سمجھیں کہ میرے اگر ہاتھ خالی ہیں، اس کا مطلب ہے میں اس چراغ کو لے کر نہیں آیا، اگلے سال میں چراغ کو لاؤں گا، وہ میرے گھر میں تو چراغ کی طرح چمکتا ہے اور چراغ کی طرح مجھے روشنی عطا فرماتا ہے۔ جب میں گھر سے چلتا ہوں وہ چراغ کو لے کر نہیں چلتا۔ میں آج کا کلام یسوع مسیح کے نام کو اوپر بات کر سکتا تھا، میں یسوع مسیح کے خطرے کو اوپر بات کر سکتا تھا، مگر میں نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو اور کلام کو رکھا کہ نئے سال کی ہماری ترجیحات کیا ہے، اس لیے کہ ہم پرانی چیزیں اپنی زندگی سے دور کریں۔ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ پرانی چیزیں رہتی ہیں، ہم اپنی مشقوں میں پرانی میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں نئی میں نہیں ڈالنا چاہتے، ہم اپنی زندگی میں خدا کا وہ کلام نہیں رکھنا چاہتے جس سے ہماری ترجیحات کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور میں مسیح ہو جاتا ہوں، میں مسیح کی قوم بن جاتا ہوں، میں مسیح میں نئی مخلوق بن جاتا ہوں، اور میں مسیح کا چراغ بن جاتا ہوں، اور مجھے اونچے مقام پر رکھا جاتا ہے تاکہ میں دنیا کے لیے روشنی بن جاؤں۔ ہم بجھے رہتے ہیں، ہمارے بجھے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ ہم سنتے ہیں، کان رکھتے ہوئے ہم سنتے ہیں، گیت سننے سے نہیں گانے سے برکت ملتی ہے۔
गीत सुनने से नहीं, प्रस्तुत करने से यानी गाने से बरकत मिलती है, और कलाम सुनने से बरकत मिलती है। इसलिए हमारा तल्लक सुनने से और प्रस्तुत करने से होना चाहिए, ताकि हमारी तरजीहात की जो ख्वाहिशात हैं उनके अंदर खुदा की मोहब्बत है। और वो मोहब्बत क्या है? लासानी है, लाजवाब है, बेमिसाल है, बेनज़ीर है। इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी से पुरानी चीजों को दूर करके यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लाकर नया होना चाहता हूं। इसलिए नया होना चाहता हूं कि मैं यीशु के साथ अपना मेल और मिलाप बढ़ाना चाहता हूं, अपने तल्लक को बढ़ाना चाहता हूं। हमारा तल्लक क्या है? हमारा तल्लक मास इतना है कि हम बस आए और जाए। नो, प्लीज अंडरस्टैंड। एक बहन, एक भाई, एक खादम, एक परस्तार को समझे कि अपना तल्लुकात चर्च के साथ बनाए। चर्च कुर्सियों का नाम नहीं है, चर्च बिल्डिंग का नाम नहीं है, चर्च अच्छी सीलिंग का नाम नहीं है, चर्च अच्छे साउंड का नाम नहीं है। चर्च अच्छे पाक उस लाइक शख्स का नाम है जिसका नाम खुदा ने दिया, तो उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाह से क्या देगा? नजात देगा। मेरी तरजीहात मेरी नजात होनी चाहिए। अगर मेरी तरजीहात के अंदर मेरी नजात है, जिसका मतलब है कि मैंने अपने खुदा के साथ मेल मिलाप किया है, खिदमत का। क्या किया है? मेल मिलाप किया है मसीह के साथ अपनी खिदमत का, और खुदा ने मुझे खिदमत सुपुर्द की है। इट्स द ग्रेट रिवॉर्ड। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है कि ना चाहते हुए भी खुदा ने मुझे खादम बनाया। मैं रात को एक मेरे पुराने टीचर थे, कोरियन और मियां बीवी, जिन्होंने इब्तदाई स्टडी में मेरी मदद की, और अमेरिका में रहते, वर्जीनिया में, और उनका कोई चर्च नहीं है। अरसे दराज से वो खिदमत घर में ही इबादत करते, और कहते पास हमारे पास 25 लोग हैं। कहते मैंने सोचा कि शायद मैंने 4 साल कोरिया में फॉरनर के साथ खिदमत की, मेरी खिदमत नाकाम हुई। मैंने कहा नो पास्टर जी, हम 12 पाकिस्तानी थे, उनमें से आपके 8 शागिर्द आज पाकिस्तान की धरती पर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उनमें मैं भी आपका शागिर्द हूं। और वो बड़ा खुश हो, वो बड़ा खुश हो, क्योंकि मैंने जब अपनी स्टडी शुरू की इस लालच से की कि मैं बाइबल नहीं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं, मगर खुदा ने कहा इंग्लिश नहीं, मैं तुम्हें कलाम में इंप्रूव करना चाहूंगा। इसलिए अपनी तरजीहात के अंदर हमें अच्छी याददाश्त बनानी चाहिए। इसलिए मैं काम करते हुए, खिदमत करते हुए, चर्च के कामों में हाथ बटाते हुए फख्र महसूस करता हूं। मैं कहता हूं खुदावन कोई बात नहीं है, अगर नहीं है कोई बात नहीं है, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे खिदमत दी है, जब तक सांसें हैं तब तक मैं तेरी खिदमत करूंगा। खिदमत किसी के कहने से नहीं, खिदमत का ज़ौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए। इसलिए खिदमत कुर्बानी मांगती है, और खिदमत क्या? कुर्बानी मांगती है। और अपनी कुर्बानी को तैयार करें और अपने मेल मिलाप को आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर, आपके चेहरे के अंदर, आपकी रूह के अंदर मसीह नजर आए। मसीह मास बड़ी बड़ी दौलत से नहीं, बड़ी बड़ी शोहरत से नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं, बड़े बड़े बंगलों से नहीं, मसीह नजर आता है आपकी खिदमत से। मैं भी चाहता तो बहुत कुछ हासिल कर सकता था, मगर मुझे खुदा ने तरजीहात दी कि मैं खुदा की खिदमत और खुदा के लोगों के लिए क्या बना सकूं, खुदा का घर बना। क्यों खुदा ने मेरे दिल में इस बात का बोझ रखा, बाहर से दूर से मिशनरी आए, उन्होंने अपनी जाने पाकिस्तान की धरती पर दे दी। खुदा के लिए अच्छे घर बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे मिशनरी बनकर हमें मसीही बनाया। कहां कहां से हमारा तल्लक है,
कितनी निचली जात से खुदा ने हमें उठाया और हमें नया बनाकर, नई मखलूक बनाकर, नए जमीन पर रखा और हम पर बरकत चाहिए बढ़ने, फलने, फूलने के लिए। अगर आज भी हम फल फूल नहीं रहे, इसका मतलब है नाकाम खुदा ने, नाकाम हम। खुदा कामयाब है कि उसने इंसानों को निजात दी है। उसकी कामयाबी ये है कि उसका बेटे ने दरेक नहीं किया, ना आने से दरेक किया, ना जमीन पर दरेक किया, ना खिदमत में दरेक किया, ना सलीब पर दरेक किया, ना जीतने के बाद दरेक किया। इसलिए वो बादशाहों का बादशाह कहलाता है। उसकी बादशाही का आखिर नहीं, हमारी जिंदगी का आखिर हो सकता है, उसकी बादशाही का आखिर नहीं है। अगर उसकी बादशाही का आखिर नहीं है तो हमें अपने बादशाही कहां देखनी? क्या अपने घरों, क्या अपने बहन भाइयों? मैं अक्सर ये सवाल करता हूं, खानदानों के अंदर हमने क्या खुदा बना रखे हैं? अपनी जिंदगियों के अंदर हम खुद खुदा बन चुके नहीं। किसी के ऊपर तवक्कल ना करे, अपना तवक्कल खुदा पर बनाए। अगर अपना तवक्कल खुदा पर बनाएंगे तो खुदा आपको उस तख्त पर बैठाएगा जिस तख्त पर खुदा बैठा है। इसलिए वो कहता तौबा करो आसमान की बादशाही, ये उसकी इब्तिदाई लफ्ज है, उसके कलाम के इब्तिदाई लफ्ज है तौबा। क्या हम अपनी जिंदगी में कभी तौबा को मौका देते हैं? प्रस्तुत करते हमारे हाथ नहीं हिलते। ये बात कभी प्रेसिडेंट को बाहर की कलीसिया में नहीं कहना पड़ता कि आप ताली बजाइए। रिदम के साथ कलीसिया खुश होती है, उनके चेहरों पर ऐसे लगता है जैसे फूल खिल उठा है और उनके दिल जो है एक जोश, एक तरफ से भर जाते हैं और वो खुदा की शुक्रगुजारी करते अपने तालियों के साथ। हम नहीं ऐसा करते भाई। हम ये सोच रहे होते, मैं आज अपने मिसेज को कह रहा था सारी घड़ियां हमें उतार देनी चाहिए। कलीसिया यही देखती रहती है कितना टाइम हो गया, कितना पासा, तो जान ही नहीं छोड़े कलाम। हमारी नजर घड़ियों पर नहीं होती, हमारे कान खुदा के कलाम पर नहीं होते, यीशु की सलीब पर नहीं होते। वाह, कभी इस बात के लिए सोचा करें। अगर हम काशा की किताब उसका 2 बाब उसकी 5वीं 6वीं आज अगर किसी को जल्दी निकाल सकता है तो वो निकाल दे। मेरे पास लिखा, मैं पढ़ भी देता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा सा आप जुड़ जाए। घबराना नहीं, अगर 12:30 भी हो जाए, चाहे कहवा अच्छा बना हुआ केक भी हमने आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए परेशान नहीं हो जाए। थोड़ा सा लंबा कलाम हो जाए तो परेशान नहीं होना। नहीं, मुकाशवा 2 बाब उसकी 5 और 6 याद कहते भाइयां तो कोई नहीं कहता कि असी कर दीए जी, असी कट लीए। अच्छा, उन कहेगा असी केड़ा पढ़िए। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू मैं जी मैंने 2 बाब उसकी 5 और 6 याद। बस ख्याल कर के तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। आमीन। क्या लिखा है? तूने अपनी पहली से क्या कर दी है? मोहब्बत। हमें महसूस होना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या मैंने खुदा से मोहब्बत छोड़ दी। खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। अगर खुदा मोहब्बत है तो फिर हमने वो मोहब्बत छोड़ दी है जिस मोहब्बत के लिए खुदा ने हमें चुन रखा है। इसलिए लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, किसके वसीले से? अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले। तो अगर हमने यीशु पर ईमान नहीं लाए तो खुदा की मोहब्बत को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो मैं ये याद होना चाहिए कि हमने उसके बेटे पर ईमान लाए हैं और बेटे पर हमारा ईमान लाना उसकी मोहब्बत का ज़र्फ है। क्योंकि मोहब्बत जो होती है उसमें कोई शिकायत नहीं होती, उसमें ख्याल रखा जाता है मोहब्बत का। ये मोहब्बत के अंदर तगैयर नहीं है, इस मोहब्बत के अंदर खुदा की कुदरत पाई जाती है, खुदा का जोर पाया जाता है, खुदा की कुर्बानी पाई जाती है, खुदा का तरस पाया जाता है और खुदा की शिफायत पाई जाती है।
इसलिए उसकी मोहब्बत की मिसाल देखें। और वो सलीब पर क्या कहता, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो अगर हम अपनी जिंदगी में ख्याल नहीं करते तो हम गिर जाते हैं। किसकी नजरों में गिर जाते हैं? कलीसिया की नजरों में भी, बहन भाइयों की नजरों में भी, और खुदा की नजरों में। इंसानों की नजरों में गिर गए तो खुदा हमें उठा लेगा। अगर हम खुदा की नजर में गिर गए तो पर कौन उठाएगा? आज अपनी तरजीहात में कोई इसका ये पैमाना बनाइए कि मैं खुदा में उठना चाहता हूं, मैं खुदा में बढ़ना चाहता हूं, ताकि खुदा का इत्मीनान और खुदा का फजल मुझ पर क्या रहे, हमेशा रहे। मैं गिरा ना रहूं, मैं उठा रहूं, मैं चलता रहूं, मैं फिरता रहूं। इसलिए खुदा ने अपने शागिर्दों को गिरने से बचाने के लिए उनसे कहा था कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले। जब उसने लिबास दिया तो वो यरूशलेम से निकले और कहां जाके मसीही कहलाए। सोचो, उन बहन सिस्टर बाजी परवीन बोलेगी, कहां पर शागिर्द मसीही कहलाए? आमीन। कहां कहलाए? नताकिया में जाके मसीही कहलाए, यरूशलेम में नहीं कहलाए। खुदा ने रोका, वहां पर बरकत दी, उन्हें रूह की कुव्वत दी, उन्हें मकासवा दिया, मगर वो कहां जाके कहलाए मसीही? जहां लोगों ने उसे कबूल कर लिया। और आप भी मसीही तब कहलाओगे जब लोग आपको कबूल करेंगे कि आप चलते फिरते मसीही हो, चलते फिरते खुदा का कलाम हो, चलते फिरते यीशु की सलीब है जहां से रोशनी निकलती। पहले से मोहब्बत छोड़। ऐसा ना हो कि खुदा कहे कि तूने पहले से मोहब्बत छोड़ दी। इसलिए जो तख्त पर बैठा हुआ है वो मेरा मसीह है, और वो जो मसीह है वो हर इंसान को एक नया इंसान बनाकर उम्मीद वफा की राह पर क्या करना चाहता? गामजन करना चाहता है, कि नई सोच देना चाहता है, एक नए इरादे का उसे ज़रफ़ बनाना चाहता है, और उनको वक़्त देना चाहता है कि हर इंसान, हर कौम, हर कलीसिया अपने इरादों के हदफ को क्या कर सके? पूरा कर सके। हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि हम अपने इरादों के लिए क्या कर रहे हैं? वह पूरा कर रहे हैं, ताकि जो हमारा वक्त गुजर गया है, यानी पुराना वक्त, अगर खुशी में गुजरा शुक्र है, अगर मुसीबत में गुजरा तो फिर भी शुक्र है? अगर हम तकलीफों में गुजरे फिर भी शुक्र है। इसलिए कि खुदा ने सांसें दी हैं तो ये सारी चीजें बर्दाश्त की। अगर सांसें ही नहीं हैं तो फिर कोई चीज जो है वो बर्दाश्त में नहीं होती। बर्दाश्त जिंदा लोग करते हैं, ईमानदार करते हैं, और अपनी उम्मीद में क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश जो के अंदर क्या होता है? बेहतरी होती है। बेहतरी का उसके अंदर आगाज होता है। जब हम अपनी जिंदगी में बेहतरी नहीं करना चाहते तो कभी बेहतर नहीं होता। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे कम पढ़ा हूं, मैं मैट्रिक को फख्र करता हूं, मगर खुदा ने मुझे खिदमत के लिए चुना है तो ये मेरा फख्र है, ये मेरी जिंदगी का बेहतर निशान। मैंने बचपन में कभी ना बहन से कभी भाई से कभी मैंने नहीं मांगा। मैंने हमेशा अपनी तब भी मेहनत करके अपने आप पे खड़ा होता। अब मैं एक इकलौता छोटा बेटा था जिसने सबसे पहले अपने बाप को नौकरी से लेकर अपने घर में कहा, बाप आप इधर रहो, मैं काम करता हूं। ये नहीं है मैंने मजदूरों के पीछे, मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी भी की, बड़ी तकलीफें सही हैं, मगर दिल को कभी छोटा नहीं किया, हमेशा बेहतरी की तरफ अपने आप को गामजन किया। इसलिए कि खुदा मेरा सहारा था, खुदा मुझसे कोई बड़ा काम लेना चाहता, इसलिए खुदा मुझे कोरिया ले गया, और खुदा ने उस धरती के ऊपर मुझे खिदमत में भी और काम में भी बरकत दी। जब मैं काम करता था तो तमाम पाकिस्तानी से सबसे पहले मैंने अपना घर भी लिया था, इसलिए कि मैं बुरी रफ्शों में नहीं था। खुदा ने मुझे ये हिकमत दी कि बुरी रफ्शों की तरफ नहीं जाना, अच्छे ईमान उम्मीद के साथ जो है मेहनत करो तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। इसलिए बरकत देना खुदा का काम है, मेहनत करना हमारा काम है। अगर हम अपनी मेहनत को छोड़ देते हैं तो फिर खुदा हमारी हकीकी तब्दीली नहीं चाहता। अगर हम हकीकी तब्दील होना चाहिए तो हमें सिर्फ बस सिर्फ कैलेंडर को नहीं देखना, यीशु की सलीब को देखना। इसलिए पौलुस
पहले कृत्य का तुम क्या कहता है, पहला बाप उसके ठहरो सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है, बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक क्या खुदा की कुदरत है। बेवकूफी उनके लिए जो सलीब की खसूसियात और माहियत को नहीं समझते। सलीब लकड़ी का नाम नहीं है, सलीब मेरे यीशु की फतह का नाम है। इसलिए अपनी अपनी सलीब को क्या किया करें, बढ़ाने की कोशिश कर, अपनी फतह की गवाही दें ताकि आपकी जिंदगी शुरू हो सके। किसमें, कलाम में, बाइबल को तुम्हें सीखना शुरू करें और हकीकी और नई सोच का ज़र्फ हासिल करें। हम सोचते नहीं हैं, कभी नहीं सोचते। शायर लिखते हुए क्या करता है, सोचता है। कंपोजर गीत कंपोज करते हुए क्या करता है, वो सोचता है। कलाम लिखते हुए खादम सोचता है, और कलीसिया चर्च आते हैं उसे सोचना बहुत जरूरी है, मगर हम तो आते लेट। मैंने तो कभी नहीं देखा मेरी जिंदगी, इसलिए मुझे कभी आप बुरा ना मानिए, मैं कभी जो है ना इस बात को मैंने बाहर नहीं देखा कुछ शख्स बुरा। वो चर्च शुरू होने से पहले चर्च खचाखच भरा होता है, एक दरवाजे से लोग निकलते, दूसरे दरवाजे से लोग दाखिल होते हैं, और पास्टर के पुलपट पर जाने से पहले चर्च खचाखच भरा होता है। लोग अपनी अपनी दुआ कर रहे होते, इसलिए वो अपने आप को खुदा के सामने रखते हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि खुदा, ये जमीन जो है खुदा का तख्त है। क्या है ये जमीन, क्या है, खुदा का तख्त। अगर जमीन इसलिए तख्त है कि उसने तमाम चीजों को क्या किया है, नया किया। अगर वो तमाम चीजों को नया करता है तो हमें उसमें नया होना चाहिए, इसलिए कि वो हमारी जिंदगी के अंदर नई नई चीजें रखता है। यीशु मसीह ने फरमाया तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। यीशु तो खुद खुदा है, मगर उसने कहा शिगिर्दों से कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। तब हम खुदा के बड़े बड़े काम देखते, इसलिए कि वो बरहक खुदाबंदों का खुदा है। जब वही बरहक है कि वही खुदाबंदों का खुदा है, तो इसलिए उसके हुक्म के अंदर क्या है, एक नई तीरगी है, एक नई अंदाज, एक नया अख्तियार है, क्योंकि वो कायनात का मालिक है। हम किसी चीज के मालिक नहीं, हम कभी नहीं दावा कर सकते ये चीज मेरी हमेशा रहेगी। नहीं, दुनिया आती चली जाती है। खुदा की दी हुई चीज हर क्या है, यहाँ पर ही। इतने मिशनरी बड़े बड़े कैथेड्रल बनाए, बड़े बड़े स्कूल बनाए, क्या वो उठाकर ले गए? नहीं, सारी चीजें जहां छोड़ गए, उनके जाने के बाद कोई और आ गया, इसलिए हमारे जाने के बाद कोई और आ जाएगा। जब हम जानते कि ये ऐसा होगा तो फिर हमें अपने आगे भी तो किसी को पीछे देखना चाहिए कि कौन मेरे पीछे है, उसका भी तैयार होना बहुत जरूरी है। इसलिए नबी के साथ खुदा नबी बना, इख्तियार करता था, एक चलता था, एक उसके साथ राइट हैंड रखता था, तैयार करता था, ताकि इसके बाद अगली बंदा कमान चुना। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के अंदर एक नई कमांड को तैयार करना चाहिए, ताकि इंसानों के दरमियान इंसान बनकर खुदा की खिदमत करे, खुदा के लिए क्या करे, भलाई पैदा करे। 4 मिनट और बोलते हैं, खुदा के लिए क्या कर सके, भलाई पैदा करे। इस सबब से इंसान के नई जिंदगी हासिल, भलाई क्या हमें नई जिंदगी अता करती है। अगर हम भलाई ना करें तो फिर नई जिंदगी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए मुकाशवा जो है खुदा ने जो दिया है, उस मुकाशवे को समझने की कोशिश करें। अगर हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए लिखा फिलिप्पियों 3 बाब उसकी 13 में आते, ऐ भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हूँ। पौलुस जेल के अंदर ये क्या है, मसीही जिंदगी गुजारने के बारे में ख्याल और कलाम करता है कि मैं तो खुद क्या हूँ, पकड़ा गया हूँ। ये कोई परेशानी की अलामत नहीं है, मगर क्या है, बरकत। इसलिए कि मैंने पुरानी चीजें क्या कर दी, पीछे चली, वक्त जो गुजर गया उनको पीछे कर दिया, और भूल कर अच्छी चीजों की तरफ क्या कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। अगर मैं जेल में हूँ तो अच्छी चीजों के लिए बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरे लिए क्या है, एक जिंदगी का क्या है, तजर्बा है। इसलिए पौलुस रसूल जो है जेल के अंदर भी मसीही जिंदगी में क्या है, जिंदा है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में जिंदा रहना सीखना होगा, और अपने ख्यालात में खुद से अपनी सलाहकारी करनी, क्योंकि खुदा अगर फरमाता है तो फिक्र ना करो, तो फिर भी अगर हम अपनी फिक्र खुदा पर ना डालते, इसका मतलब कि उस पर हमें एतमाद नहीं। अपने एतमाद को बढ़ाइए, और उस शख्स को देखे जो पकड़ा हुआ भी जेल में भी हमारी तरह नहीं सोचता है, वो मसीह की तरह सोचता है।
मगर हम अपनी तरह सोचे तो हम क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। अगर मसीह की तरह सोचेंगे और मसीह की मानद बढ़ेंगे तो हम अपनी जिंदगी में जोर पाते जाएंगे। तो फिर हमारा दिल क्या कहेगा, दिल दा मैं कमजोर तो यीशु मैनू साफ के रखी। तो दिल क्या है, हिले बास। तो जब मैं खुदा में हूँ, मसीह में हूँ, तो फिर तो मेरा ये फख्र बन जाएगा, दिल दा मैं कमजोर तो यीशु मैनू। साफ के रखी। तो ये कमजोर दिल भी खुदा का क्या बन जाता है, जोर बन जाता है और खुदा की तरह सोचना शुरू करता है। ज़हन खुदा की तरह सोचता, जब खुदा की तरह सोचता तो खुदा फिर अपना इल्म देता है, अपना मुकाशवा देता है, ताकि हम उसके पीछे चलने की क्या कर सकें, रियाजत कर सकें। अच्छा सिंगर जो होता है वो हमेशा रियाजत करता रहता है कि उसका गला साफ रहे, उसकी आवाज जो है मीठी और शीरी बनी रहे और सुनने वालों का क्या है, सकता तारी रहे। तो अगर वो अपनी रियाजत ना करे तो गला बसुरा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी में अपने तरजीहात के ऊपर सलाहकारी नहीं करते तो इसलिए फिर हम खुदा से दूर होना शुरू करते। और खुदा नहीं चाहता कि हम खुदा से दूर हों, बल्कि खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। जुड़े रहे। इस आयत को पढ़ते हैं और खत्म करते हैं, मत्ती 6 बाब और 33। अगर निकाले कोई तो फिर खत्म करते हैं इसको। मत्ती 6 बाब उसकी 33 आयत। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। चलिए सब जिन्होंने निकाला कह दिया आमीन, तो मिलके पढ़ते हैं। आमीन। निकाल लिए, चले शुरू करें जी। पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की क्या करो, तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जब क्या हो जाएगा, सारी चीजें हमें मिल मिल जाएंगी। जाएंगी। इस खुशखबरी के कलाम को अपने दिल में रखे, दुख ना करें, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करें और जो तरजीहात में कमी रह गई है नए साल में उसको पूरा करने की कोशिश करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे और आपको अपनी पनाह में रखे और खुदा में दिलेरी पाए। खुदावंद आपके साथ।